جس نے ہارٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہے ہیں کہ بیسیکلی ہم نے اقرار کیا ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہمارا شافی ہے، خداوند ہمیں شفا دیتا ہے، خدا کے اندر یہ قوت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، خدا ہمیں ہیل کرنے کی، شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ جو ہم نے پاک الفاظ ابھی سنے ہیں کہ خداوند تیرا شافی، اور پھر ہم نے کہا کہ خداوند میرا شافی، یہ پاک الفاظ بڑا اثر رکھتے ہیں۔ جب آپ ایمان سے بولتے ہیں کہ خداوند تو میرا شافی ہے، تو مجھے شفا دے، تو اس وقت ہمارے بدن کی بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں۔ یہ ایک سچائی ہے، اور یہ تجربہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو ایمان سے خدا سے بولتا ہے کہ خداوند مجھے شفا دے، میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، میری بیماری کا تو علاج کر۔ بڑے خوبصورت پاک الفاظ ہیں، ابھی بھائی نے خوبصورت تلاوت کی کہ اگر تو دل لگا کر خدا کی بات سنی اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے۔ حکم دیا گیا ہے اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات کو سنے اور اس کے حکموں پر عمل کرے۔ سننا اور عمل کرنا یہ دونوں الگ الگ کام ہے۔ جب تک کوئی سنتا نہیں اسے برکت نہیں مل سکتی۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم چرچ میں آتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، اور سننے سے ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ خدا کے بیٹے آگے آ رہے ہوتے ہیں مذبح پر، خدا کی بیٹیاں، اور وہ بڑی بڑی گواہیاں دے رہی ہوتی ہیں، تو گواہیوں کو جب ہم سنتے ہیں اس وقت بھی ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس گواہی میں یسوع کی شان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ میں بیمار تھا، یسوع نے مجھے شفا دی، میں ڈگا ہوا تھا، یسوع نے مجھے چک لیا، میں خستہ حال تھا، خدا نے مجھے آزادی بخشی۔ تو جب ہم گواہی کو سنتے ہیں پھر ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے کہ اس بھائی نے اتنی بڑی گواہی دی ہے، اس بیٹی نے اتنی بڑی گواہی دی ہے، میرا تو نقص ڈیڑا ہے، میری باڈی سے مسئلہ چھوٹا جا ہے، یسوع مجھے بھی شفا دے گا۔ پھر آپ کلام کو سنتے ہیں، کلام کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، اور ایک دن آتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی گواہی بن جاتی ہے۔ دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو سنڈے کے دن چرچز میں جاتے ہیں، اور ان میں ایک بڑی بھیڑ ایسی ہے جو چرچز میں جاتی تو ہے لیکن اپنی ہی باتیں خدا کو سنا کر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر میں نے کیا بولا ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو مجھے پتہ ہے یہاں پر جتنی بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہیں وہ دل سے خدا کی حضوری میں آتے ہیں۔ اپنی نجات چرچ میں جو ممبرز آتے ہیں، آج میں بتانا چاہتا ہوں، جو پاکیزگی، جو مسا، جو قوت، جو انائنٹنگ خدا نے، جو آگ سے رہائی کی برکت خدا نے اپنے خدام کے اندر رکھی ہوئی ہے، یاد رکھیں اس چرچ کے بچے کے اندر یہ برکتیں شفٹ ہو جائیں گی۔ میرا ایمان ہے بہت جلد خدا ایسا کرنے کو، کیونکہ ہم خالص ورشپ کرتے ہیں، خالص کلام کو سنتے ہیں، کلام کی تشریح وہ ہمیں ملتی ہے جس کی ہر روز ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا اس چرچ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعا کریں گے کہ معجزات ہوں گے۔ استاد نور زور لان کی ضرورت ہی نہیں ہے، شاگرداں جو خدا نے اینی قوت پا دیں گے۔ میرا ایمان ہے ایسا ہونے پہ ہے جیسے ایلیا ہے، الیشا ہے، اتنے نکے چھوٹے چھوٹے ننے بچے ہاتھ ودان معجزے ہوں، تسی حیران نہیں ہوگے؟ یسوع نے حیران ہی تے کرنا ہے اپن۔ یہاں پر وہ مسا خدا نے رکھا ہے جس میں جب آپ آتے ہیں تو آپ اس مسا سے فلفل ہوتے ہیں۔ اور میں بتا رہا تھا دنیا میں ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہیں کہ جو چرچز میں جاتے ہیں لیکن خدا کو اپنی ہی سنا کر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ خدا دی سن دے نہیں، کاٹ سن دے، لیکن آپ خدا کی سنتے ہیں، مجھے پتا ہے۔ اور جو خدا کی سنتے ہیں معجزات ان کی زندگی میں خدا پیدا کرتا ہے۔ جو شخص خدا کی سنتا نہیں ہے
اس کے اندر اس کی زندگی میں معجزہ نہیں ہوتا. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ خداوند تو اودی بھی سن لی ہے, خداوند تو ایدی بھی سن لی, میری کیوں نہیں تو سنتا؟ تو خدا سنے کس طرح؟ خدا کہنا کہتی ہے میں تیری سنن لگنا ہے, تو خود بھاجی جانا ہے. آپ کو سنو کہ جب خدا کہتا ہے میں تیری سننے لگتا ہوں, تیری سنتا ہوں, پھر جب تجھے سنانے لگتا ہوں, میں تجھے بلیس کرنے لگتا ہوں, تجھے برکت دینے لگتا ہوں, اس وقت تو میری حضوری میں سے اٹھ جاتی ہے, اٹھ جاتا ہے. بڑا ضروری ہے آج ہم سننا سیکھ جائیں. جو ایماندار لوگ ہیں وہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں, چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں اس کی حضوری میں, اس کے قدموں سے لپٹے رہتے ہیں. پنجابی سے کہتے ہیں ٹھیٹھا طرح, ایماندار یسو نے قدموں کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں برکت ملے گی, ضرور خدا ہمیں برکت دے گا, خدا ہمیں آزادی دے گا. جو شخص خدا کو چھوڑ دیتا ہے, چرچ کو چھوڑ دیتا ہے, کلام کو چھوڑ دیتا ہے, ورشپ چھوڑ دیتا ہے, وہ کبھی برکت نہیں پاتا. بائبل مقدس میں لکھا ہے ایسا شخص سمندر کی لہر کی مانند ہے, کبھی ادھر کو جا رہی, کبھی ادھر کو جا رہی ہے, وہ سٹیبل نہیں رہتی. لیکن جو شخص آس اپنے اندر رکھتا ہے, امید رکھتا ہے کہ ہاں خدا مجھے برومند کرے گا, میرا اتنا بڑا مسئلہ بھی یسوع کے صلیب کے نیچے جب میں آئی تھی, اتنا بڑا میرا مسئلہ حل ہوا, ابھی بھی جو میرا مسئلہ ہے وہ ضرور یسوع حل کرے گا. خدا کے خدام جو ہے وہ زور لگا رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, لیکن حل مسئلے کو یسوع ضرور کرے گا. اس کے لیے ہم نے خدا کی آواز کو سننا ہے اور دل سے سننا ہے. بڑے خوبصورت پاک الفاظ ہے کہ اگر تو دل لگا کر, یہ جو لفظ ہے اس پر سارے غور کریں گے, دل لگا کر, کئی دفعہ دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں, اپنے ریلیٹیوز کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج تینے جڑی میں گل دسنی نا وہ دل لا کے تو سننی ہے, چج نہ سننی ہے, دھیان دے نال سارا فوکس کرنا ہے میری بات کی طرف. میں تینوں بڑی بڑی خبر دین لگا, وہ خبر دے چاہے کسی دی چگلی ہوئے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ میری گل غور نہ سننی. تو جیزس کی جو باتیں اس پہ تو زندگی پائی جاتی ہے. یسوع نے کہا, پترس رسول جیزس سے کہتے ہیں کہ زندگی اور زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے, ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں. نہ صرف زندگی بلکہ جیزس کے پاس زندگی کی باتیں بھی ہیں, زندگی کی باتیں جن کے اندر ہمیں بڑا لطف ملتا ہے. انسان بور نہیں ہوتا, انسان رنجیدہ نہیں ہوتا مسیح کی باتوں میں, انسان دکھی نہیں ہوتا مسیح کی باتوں میں. مسیح کی حضوری میں جو شخص آ جاتا ہے, یاد رکھیں اس شخص کے سب سے پہلے خدا جسمانی آنسو اس کی زندگی سے ختم کر دیتا ہے. اگر دنیا دے آنسو نہیں, وہ میری پھوپھی مار گئی 10 سال تو میری حالے تک بندہ رو رہا ہے, وہ میری دادی مار گئی سی ہے, وہ میرا رشتہ دار, وہ 10 سال تو حالے اتھرو سکے نہیں ہے, وہ میرا لاس ہو گیا ہے, میرا یہ نقصان ہو گیا ہے. اس کے لیے دنیا آنسو بہاتی ہے. ایماندار لوگ ان چیزوں کے لیے آنسو نہیں بہاتے. وہ آنسو بہاتے ہیں کہ خداوند میں نے دعا کرنا سکھا, خداوند مجھے کلام پڑھنا سکھا, خداوند مجھے پرستش کرنا سکھا. دنیا داری کے آنسو جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں, جب خدا کی آواز سنتے ہیں, اس وقت دنیا داری کے آنسو ہماری زندگی سے خدا ختم کر دیتا ہے. کیونکہ ایمانداروں کے آنسو بڑے قیمتی ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے ٹیئرز بڑے قیمتی ہیں خدا کی حضوری میں. ایمانداروں سے تو خدا پیار ہی بڑا کرتا ہے. ان کا جو لیول ہے وہ بہت بڑا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کیا کر سکتا ہے, اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ کوئی شخص بتائے گا جماعت میں کافی بڑی کلیسیا یہاں پر موجود ہے, ایک وزیر اعظم جو پرائم منسٹر ہے یا کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہے, اس کے پاس کیا اختیار ہے؟ مسز فیاض بتائیں گے کیا اختیار ہے وزیر اعظم کے پاس. باجی کی کر سکتا ہے وزیر اعظم؟ وہ ایک فون کرے گا پورے ملک دے وچ ہفرا تفری, کیونکہ پورے ملک کے اوپر اس کا کنٹرول ہے. لیکن ایک افسوس دی گل ہے کہ وزیر اعظم دا صرف ملک دے وچ ہی کنٹرول ہے, ہور کتے نہیں. اس ملک کے اندر جو ایماندار رہتا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ جب بولتا ہے تو کہاں پر ہلچل ہو جاتی ہے.
जब एक सियासी बंदा बोलता है तो सिर्फ दुनिया के अंदर, उसके मोहल्ले में, उसके शहर में सिर्फ हलचल होगी। लेकिन जब ईमानदार दुआ करते हैं, आंसू बहाते हैं, उनके आंसुओं से, उनकी दुआओं से फिजाओं के अंदर शोर मच जाता है, आसमान हिल जाता है, खुदा काम करने पर मजबूर हो जाता है। इसका मतलब है ईमानदार वजीर आजम तो बड़े हैं, तुसी बादशाह तो बड़े, आप और मैं विच नहीं है, मैं अपने आप को पीछे नहीं करूंगा। हम सब, हमें खुदा ने जो आदा दिया है वो बहुत बड़ा है। इसलिए खुदा ने कहा तुम शाही काहिनों का फिरका। और एक और खुदा ने बात कही है, किस किस को कलाम याद है? अब दिन चर्च दी कलीसिया कलाम ना पढ़ी हुई कलीसिया है। तुम शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम। मैं चाहता हूँ थोड़े थोड़े सारे आगे हो जाएंगे। मेरे बड़े प्यारी कलीसिया है, खुदा की दुल्हन, और मेरा ईमान है ऐसे कलाम सुनते सुनते जहीर भाई, ऐसे कलाम सुनते सुनते यीशु ने आज ना बस अपने उड़ के यीशु ने इस्तकबाल करना है। हम ये जो घुस कर बैठ रही है ना, जैसे जीसस ने आना हमारे पार निकल आने, हमने उड़कर यीशु का इस्तकबाल करना। बड़े मुबारक वो लोग हैं जो चर्च आते हैं ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। नदीम भाई, उन्होंने उड़ने की कोशिश करना, उड़िया नहीं जाना, लेकिन जिन्होंने जो चर्च आए हैं उसके कलाम के नीचे हैं, उन्हें खुदा पर दे देगा, वो उड़ेंगे। तो जेड़े सुत्ते ने सुत्ते ही रहेंगे। आप मुबारक है जो उसकी हजूरी में आते हैं, जो उसके मुंह की बातें सुनते हैं, क्योंकि जिंदगी और जिंदगी की बातें यीशु बादशाह के पास है। आप मुबारक है, आप यीशु के नाम से कहलाते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। शायद आपका नाम छोटा सा हो, लेकिन जैसे ही उसके साथ मसीह लगता है, उसकी कोई वर्थ बन जाती है, उसके अंदर ताकत आ जाती है, उसके अंदर जान आती है। क्यों? क्योंकि मसीह के अंदर जिंदगी है। याद रखें, मसीह का नाम जब भी आप दिल से लेते हैं, मसीह के कलाम को जब दिल से सुनते हैं, तो बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं। इस चर्च में जो वर्शिप होती है, आपको पता है, उसका मुझे रात को जब मैं प्रेयर में था तो खुदा मुझे दिखा रहा था, ये रात के पैरों की बात है, और सारी गली में तो अंधेरा था, तो मुझे खुदा मज़बा से दिखा रहा है कि सारी गली के अंदर नूर है और स्टार्स मूव कर रहे हैं। मैं सोच रहा था चर्च के दाएं बाएं रहने वाले भी मुबारक हैं, इतना मसा यहाँ से बहता है और दरियाओं की तरह मसा टहलता है, और जिसे वो मसा अनाइंटिंग जिस शख्स को छू जाती है, फिर अलीशा की तरह वो बंदा दुनिया का नहीं रहता। अलीशा को जब मसा ने हिट किया, उसने अपना सारा कुछ छोड़ दिया और वो यीशु के पास आ गया, मसा के बीच आ गया। उसने एलिया से कहा, आज से तू मेरा टीचर है, तू मेरा उस्ताद है, मैंने भी इस मसा को लेना है। और ये मसा जो है, ये उसकी हजूरी में आने से मिलता है, उसके सुनने से मिलता है। अगर आप चाहते हैं आपको शिफा मिले, जैसे आज के मैसेज का हमारा टॉपिक है खुदावंद तेरा शाफी, अगर आप चाहते हैं आपको शिफा मिले, तो फिर हमने अपनी भी खुदा को सुनानी है, खुदा दी भी सुननी। शुक्र है खुदा का कि यहाँ पर जब हम खुदा की सुनते, किसी को नींद नहीं आती, कोई नहीं सौंदा, कभी किसी ने किसी ने मोटा नहीं मारे कि उठ जा। क्यों? क्योंकि मसा है, यहाँ पर अनाइंटिंग है। और मसा जब बाजी आग बालती हुए, सर्दियाँ आग आप लगी हुई है, तड़ नींद आ रही, कितने नींद आ रही, बहुत ठंडी बड़ी है, अंदर मूसा हाथ सेक रहे हैं। तो यहाँ पर अनाइंटिंग है, मसा का सेक है। जितने आज के दिन की बात कर रहा हूँ, आज चर्च में आए वो सारे लकी हैं, वो मुबारक है। रात को खुदा ने अपने खुदाम को मसा के एक और लेवल से भरा। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, और वो मसा सारा फिजा के अंदर ठहरा हुआ है। अनाइंटिंग यहाँ पर मौजूद है। आप और मैं जब हम इस अनाइंटिंग को सुनेंगे, उस वक्त ये अनाइंटिंग हमारे अंदर काम करेगी। आगे देखेंगे, क्योंकि टाइम कम है, आगे हम देखेंगे। आगे ही लिखा है खरूज की किताब 15वां बाब, उसकी 26वीं आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर
कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। अजीजों, इस बात को अपने दिल में रख लें। आपके बदन का एक एक पुर्जा यीशु मसीह नासरी ने अपने हाथों से बनाया है। जब खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को बनाएं, तो बाप के अंदर था उस वक्त बेटा जो दम था, तो बाप बेटे से भी कह रहा है, हॉली स्पिरिट से भी बाप बोल रहा है कि आओ हम इंसान को मोहब्बत और चाहत से बनाएं। तो जीसस ने भी कारागरी की इंसान के ऊपर, पाकरू ने भी इंसान के ऊपर काम किया। तो इसका मतलब है हमारी आंखें, हमारी किडनीज, हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, हमारा दिल, हमारा ब्रेन, हमारे बदन का एक एक आज़ा, वो सब के सब अज़ू जो है वो यीशु ने बनाए हैं। कभी इंसान होते गुनाह के सबब से या मौसमी असरात के सबब से या किसी और चोट लगने के सबब से या अबलीस के शिकार होने के सबब से हमारे बदन का कोई भी अज़ा जब मफलूज हो जाता है तो परेशान नहीं होना। परेशान जद तू होवेगा यीशु नाल होवेगा। आपने परेशान नहीं होना, आपने यीशु के पास आना है और यीशु से कहना है, जीसस मेरी खुशी को अबलीस ने छीन लिया है, मेरे इस अज़ा को अबलीस ने हिट किया है, तू अपने लहू से मुझे दोबारा से शिफा दे, मेरे अज़ा को दोबारा से बना। आज आपको पता है लोग ये जो डायबिटीज है, शुगर की बीमारी से बड़े परेशान है। और मेरी खिदमत में 2019 से खुदा का खादिम फुल टाइम खिदमत में है, 2010 से मुबशराना खिदमत खुदा का खादिम करता था। तो इस खिदमत के पीरियड में 3 ऐसे लोग जो इस वक्त बहुत मीठा खाते हैं, लेकिन आज से चंद साल पहले उन्हें बहुत ज्यादा डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, शुगर उनकी बहुत हाई रहती थी। तो सिर्फ उन्होंने क्या किया, वो दुआ करवाते थे, यीशु की हजूरी में आते थे। मुख्तलिफ खानदानों के वो 3 अफराद हैं, एक यूहन्नाबाद में भाई है। तो आज शुगर की डिजीज उसकी हड्डियों से भी जा चुकी है और बिल्कुल नॉर्मल है। तो वो बोलता है कि भाई साहब अभी कोई मुझे दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि शुगर घट कदी कदी हो जाती जो कमजोरी होती जिसमें, कभी शुगर हाई नहीं होती। तो मैं ये समझता हूं कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका यीशु के लहू में इलाज ना हो। हर बीमारी का यीशु के लहू में इलाज है। अगर अखां च चिट्टा मोतिया उतर आया है तो परेशान नहीं होना, वो काला भी नहीं होगा, यीशु चिट्टे ने खत्म कर देगा। अगर दाढ़ से बड़ी दर्द है तो यीशु दंद भी नहीं दे सकता। अगर कान में दर्द है तो जीसस वो भी खत्म कर सकता है। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਬਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ बड़ा तेज चलता है, तो जीसस उसे भी नॉर्मल कर सकती है। रिबेका बहन, हर तरह की मायूसी को भी जीसस खत्म कर सकते हैं। आज हॉस्पिटल्स में लोग बहुत परेशान है बीमारियों की वजह से। वो कहते हैं जी डॉक्टर्स ने हमें जवाब दे दिया है, अभी सिर्फ दवाई खाते रहेंगे तो ठीक है। ऐसा नहीं है, आप उसकी यानी खुदा की, उसके बेटे यीशु की आवाज सुनना शुरू करें, आपकी बीमारियां जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? जाएंगी यीशु के नाम से। हर तरह की डिजीज जाएगी, हर तरह की बीमारी निकलेगी। कुछ ऐसी बीमारियां आज याद रखिएगा, जितनी जमायत यहाँ पर मौजूद है, कुछ ऐसी बीमारियां हमारे बदनों में घुस जाती हैं। बेटे बाइट की तरफ फैन ऑन करके, कुछ ऐसी बीमारियां हमारे बदनों में घुस जाती हैं जो इंसान के गुनाह के सबब से आती है। ते जितनी देर तक गुनाह नहीं जाएगा, पादरी बेचारा भावें सारी रात दुआ करे है, भावें ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ पै जाने, वो बीमारी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जिदे वास्ते दुआ पादरी सब करता है, पास्टर को खुदा अजर देगा। लेकिन जिस शख्स की जिंदगी में गुनाह है, जब तक वो गुनाह नहीं जाएगा, बीमारी नहीं जाएगी। आपने नहीं कहना कि ये मेरी बीमारी गुनाह दे सबब, शायद ये मौसमी बीमारी। जिसकी जिंदगी में गुनाह होता है उसे पता होता है, उस शख्स को फील वो कर रहा होता है कि हाँ मेरी जिंदगी में ये जो बीमारी आई है ये गुनाह के सबब से। कुछ मौसमी बीमारियां भी होती है, मौसम तब्दील हो रहा है, थोड़ा या जुकाम लग गया, थोड़ी सी कफ आ गई, खांसी की प्रॉब्लम बन गई, हल्का फुल्का कफ चढ़ गया। बाइबल से भी जिक्र है ना, मुकद्दस पतरस की सास को
तब था, बुखार था, तो वहां पर जीसस गए, जीसस ने दुआ की और पतरस की सांस बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये छोटी मोटी डिजीज ये शुरू से चलती आ रही हैं, इसलिए इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमने मसीह की आवाज सुनते रहना है। लास्ट में मैं बताऊंगा, उसके बाद हम कलाम को क्लोज करेंगे। कई दफा जब इंसान कुछ बीमार हो जाता है मौसम की वजह से मोस्टली, तो सबसे पहला उसका एक्शन आपको पता है क्या होता है? वो बंदा चर्च आना छोड़ देता है। पादरी साहब को इधर फोन करके ना कि भैन कितने सा ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਸੀ भाई ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਰਚ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਕਿਸੇ लगता जी पीड़ी बड़ी ਹੁੰਦੀ ਸੀ। तो जब ठीक होती है बदन के अंदर ताकत होती है फिर कभी कितने आ जाना है, लेकिन जब बीमार होते हैं मोस्टली ऐसे होते हैं कि हम चर्च को सबसे पहले छोड़ते हैं। जी ऐसा है मोस्टली। आप देखिए सुने लोगों से वो कहेंगे चर्च नहीं गए, वो बच्चे बीमार थे ना। तो आपको पता है ये ऐसी जगह है, ये रूहानी हॉस्पिटल है। जब कभी इंसान कमजोर होता है या बीमार होता है तो कभी चर्च को नहीं छोड़ना, बल्कि बीमारी से बहुत दौड़ा ला के आने। कोशिश हमने कोशिश करनी है ना। हम हंस इसलिए रहे हैं कि बीमारी में तो दौड़ा नहीं जाएगा। हमने कोशिश करनी है कि खुदावंद देख ले, मैं बीमार था फिर भी देख ले मैं आई हूँ या आया हूँ तेरी हजूरी में, मुझे शिफा दे। आपको फ्री ऑफ कास्ट यहाँ से शिफा मिलेगी। मैं कई दफा फील करता हूँ दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जब वो पैसा लगाकर दवाई ले लेते हैं उन्होंने सिद्धक हो जाता कि सानू आराम आई है। तो जब फ्री आपके लिए प्रे की जाती है फिर पता होता है कि पता नहीं आराम आना है कि नहीं आना। ईमान रखें, आपको जीसस हील करेगा, आपको छुएगा। आज के बाद किसी ने नहीं कहना कि भाई साहब मैं बीमार था इसलिए मैं चर्च नहीं आई, मैं कमजोर था इसलिए मैं उसकी हजूरी में नहीं आया। अजीजों बहुत मेहनत करते हैं खुदा के जो सच्चे खादिम। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, दुनिया के अंदर हजारों लाखों ऐसे खुदा में तो जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कुर्बानियां दी, सारियां ख्वाहिशां मारे हैं। दिल उन्हां दे विच भी है, वो धड़कदा भी है। ये नहीं कि पादरी दा दिल बंद होया है। शायद आप फील करेंगे भाई साहब दे शायद इसलिए उसके अंदर ख्वाहिशें नहीं क्योंकि उसका दिल बंद होया है। हाँ जी ऐसा है, भाई साहब का भी दिल धड़कता है ना, लेकिन उसने दुनिया की सारी ख्वाहिशों को सलीब पर खींच दिया है और अपनी जिंदगी उसने मसीहा को दे दी है। उसने फर्स्ट दर्जा जो खादमा या खादम रूहानी होते उन्होंने फर्स्ट प्योरिटी वो खुदा को देते हैं। उन्हें पता है कि उसकी हजूरी में ही हमें सारी बरकतें मिलेंगी। आज इस बात को याद रखें, हमने खुदा की आवाज को सुनना भी है, उसके हुक्मों पर अमल भी करना है, उसके आइन पर भी अमल करना है और दिल से उसके कलाम को सुनना है। तब खुदा ने फिर वादा किया कि मैं तेरी जिंदगी से बीमारियों को खत्म भी करूंगा और वो बीमारियां जो मिस्र के मुल्क में भेजी गई, वो बीमारियां, वो डिजीजेस, वो वबाएं, वो वबा जो इंसान की डेथ कर देती है, खुदा उनसे भी हमें आजाद रखेगा। आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है और ये मच्छर की डिजीज जो है, मच्छर की ये जो जर्म्स हैं, ये तकरीबन हर घर में फैले हुए। तो इसमें डेंगू मच्छर भी हो सकता है, इसमें मलेरिया वाला भी हो सकता है। ईमानदारों को कोई वबा नहीं छू सकती। ज़बूर 91 के अंदर लिखा हो कोई वबा, कोई भी वबा वो तुझे छू नहीं सकती, तेरे नजदीक नहीं आ सकती, कोई तपाली तेरे नजदीक नहीं आ सकती। आइए सारी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और कुछ देर के लिए हम सब प्रेयर करेंगे। वक्त है सब दुआ करेंगे। हालेलुया। हर शख्स प्रेयर करेगा, छोटी बेटियां भी आइज क्लोज कर लें।